Welcome class 8. I hope you all are well. So children, as you know that we were doing chapter light and we have studied till terms related to refraction. Yes? Now children, in this terms related to refraction, I have explained you already that the ray which incident at the surface of separation of two medium. Like I told you, what is refraction? Refraction is the bending of light when light travels from one medium to another. Okay, and where does the bending takes place? At the surface of separation. Like here two mediums are there, air and water, and XY is the surface of separation. So the ray which incident at the surface of separation is your incident ray, and the ray which gets bends or gets refracted, that is your refracted ray. And this is as you know that whenever any ray incident at any surface, imaginary normal, it starts existing by itself, and that angle I is the angle of incidence between incident ray and normal, and angle R is the angle of refraction between normal and refracted ray. Now children, you can see that instead of going straight, this ray gets bends, and this is known as your refraction. I have explained you everything about this thing. Yes. Now today children, I am going to explain you the another topic, that is effects of refraction of light. Now this topic is very important children. Now children, from this figure you can here see that when I have already shown you this demonstration in the last video, that when you are going to dip a pencil inside a container containing water, at the surface of separation between air and water, you will find that pencil, it feels like pencil has been broken into two parts. Okay, you see like this, you observe that pencil is little bit broken and it has been raised. So this thing happens because of the, why? Because of the refraction or because of the bending of light. Okay, you can see here that light ray from point A, initially from point A, travels from denser to rarer. And you also remember this rule that when light ray travels from denser to rarer medium, it bends away from the normal, and when light ray travels from rarer to denser, then it bends towards the normal. Okay, so when from point A, light goes from point A, the normal start exist as its own, and it bends, the light ray bends away. Same way you can see we have taken two light rays, and when our brain it interface or when our brain merges these two light rays, तो हमारी light rays यहाँ merge होने की बजाय कहाँ पर मिलती हैं? At point A dash, and that is the reason we feel that pencil is little bit it has been raised, or you can say broken at the surface of separation. So ये इसलिए हो रहा है because of the refraction, bending of light. Bending of light हो जा रही है, light bend हो जा रही है, लेकिन our mind reads, हमारी जो हमारा mind है, it reads that light still goes straight, but actually light bends, and due to extrapolation our mind feels that the light rays, we feel that the rays they meet little bit above from the actual point, and that is the reason we feel that pencil is little bit raised. Now children, there are few more phenomena of, or you can say few more phenomenons of the refraction of light. The very important thing is, I'm going to explain you the second point, that is refraction of light causes mirages to be observed in a hot sandy desert. Now children, many of the times you have seen that suppose you are moving on a hot, or you can say hot summer, there is a hot summer time and you are moving on the road. So sometimes you feel that far away there are the traces of water. You feel like that or not? But as you move closer to that traces which you find illusion there, you find that there is no water. आप जाते हो लेकिन आपको लगता है वहां पर पानी पड़ा हुआ है, ट्रेसेस ऑफ वाटर है, लेकिन जैसे आप उसके पास जाते हो, यू फील दैट देयर इज नो वाटर. So these all are what? These all are mirages which we generally observe in hot sandy deserts, or you can say in hot summer days also we observe. Now why we observe mirages? Why we observe traces of water but which does not actually exist?
ऐसा क्यों होता है? हम हॉट समर्स में हम चलते हैं रोड पे और हमको दूर एक पानी नजर आता है, बट एज वी मूव क्लोजर टू दैट देयर इज नो वाटर इज डिसअपियर्ड. सो व्हाई डू वी फील लाइक दैट? दिस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हमें ये दिखता है कि देर इज अ ट्रेसेस ऑफ वाटर, बट व्हेन वी एक्चुअली मूव क्लोज टू दैट देन देर इज नो वाटर. नाउ चिल्ड्रन, हियर व्हिच कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड in mirages? Do remember the concept of total internal reflection is applied. Okay, mirages में कौन सा concept लग रहा है? Total internal reflection. Now how? I'm going to explain you this thing on the paper. Now suppose children, as you know that suppose this is the surface of the hot desert. Okay, surface of the hot desert. Now there is a concept children that land gets more heated, or you can say it gets more quickly heated as compared to air. Okay, so when land, suppose the sun is there, okay, and when land gets heated, you know that land will get quickly heat. So what will happen? The layer of the air above the land, it will also become hot or not? Yes, क्योंकि लैंड जो है हमारा वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो जो उसके अबव एयर होगी वो भी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी. इट विल ऑल्सो बिकम क्विकली हॉट. ओके, बट एज वी मूव अबव द लेयर्स ऑफ एयर विल बिकम कूल. ठंडी होती जाएगी. जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे अबव द लैंड, द लेयर ऑफ एयर विल बिकम कूलर. Okay, but the layer of the air which is close to the land or the surface, it will be more, or you can say it will be extremely hot as compared to the other layers of the air. So children, what happens? As you know, more denser, more warmer is the air. What will happen? जितना ज्यादा एयर गर्म होगा उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? दे विल बी मोर फार अपार्ट. Yes, molecules दूर दूर होंगे. It will be less denser. Yes, and more the cooler is the air, molecules will be more closely packed. You know this expansion in the gases. Yes, here the layer of the air which is close to the surface of the land, it has also become hot because of the land. So here the molecules will be separated. They will be more far as compared to the cooler air. Yes. So it means that in this way the different layers of air is created of different densities. Yes, भाई जो layer of air लैंड के क्लोज होगा वहां पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा गर्म होंगे. दे विल बी मोर फार अवे. फिर हम थोड़ा ऊपर जाएंगे, मॉलिक्यूल्स कुछ कम गर्म होंगे, कूल होंगे, तो द मॉलिक्यूल्स विल बी मोर क्लोजली, मोर समवट मोर क्लोजर. हम और ऊपर जाएंगे, मॉलिक्यूल एयर विल बी क्वाइट मोर कूल. वहां पर मॉलिक्यूल्स और पास आ जाएंगे. और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे द व्हाट विल हैपन? द एयर विल बिकम मोर डेंस. ओके, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एयर विल बिकम मोर डेंसर. ओके, नाउ हाउ डज दिस मिराजेस अकर एक्चुअली? नाउ सपोज चिल्ड्रन, what happens? Suppose there is a or you can say I will show you here what happens. Suppose this from the sun light will come. Okay, light will incident like this. Now as the light will incident at this first layer of air, you know imaginary normal will exist. Okay, now since first layer, the very top layer will be more dense because here the air is cooler होगी तो more denser होगी, तो it will bend towards the normal. Yes, now again this will become this first the refracted ray will now become the इंसिडेंट रे फॉर दी सेकेंड लेयर ऑफ द एयर. यस, ओके, यहां पर फिर से नॉर्मल एग्जिस्ट हो जाएगा. और फिर क्या होगा, क्योंकि दिस वॉज मोर कूलर था, अब नाउ एज यू आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्राउंड इट विल बी लेस कूलर एज कंपेयर टू फर्स्ट वन. सो यहां पर क्या है, लेस कूलर है, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल से अवे बेंड करेगी. यस, अब नाउ अगेन दिस रे विल बिकम इंसिडेंट रे फॉर द थर्ड लेयर ऑफ द एयर. Now third layer of the air will be again less cooler than the previous layer. इससे भी कम cooler होगी, और you can say it will be quite hot because it is close to the land. So यहाँ पर density कम होगी. Again it will bend away from the normal.
then again it will come enter to the next layer, and here the next layer will be more hotter as compared to the next. फिर से ये normal से दूर जाएगी, and at the last when it will come close to the land, here the layer of the air will be more or extremely hot. और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंसिडेंट रे जो होगी हमारी आफ्टर रिफ्रैक्शन, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, अब सबसे ज्यादा हमारी इंसिडेंट रे अवे जाएगी फ्रॉम द नॉर्मल, एंड हेंस बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, जो हमारी इंसिडेंट रे सबसे ज्यादा अवे जाएगी and suppose you are standing here, it is your eyes. Okay, so what will happen, instead of refraction, आगे refraction होने की बजाय क्या होगा, the ray will reach to your eyes. Okay, due to total internal reflection, and hence you will see here, और हमारा brain rays को सीधा read करता है, straight read करता है, and we will हमें लगेगा कि rays यहाँ पर मिल रही है, and we will find a traces of water here, and which is nothing but is your mirage. Now this thing has been explained very nicely here, so you can see from this diagram here, children. Here you can see this is the desert surface, here it is the tree, here it is the traces of water, and here it is the reflection of this tree also. Now you can see the layer of the air which is close to the desert or land area, it is extremely hot. फिर हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो very hot, फिर उससे कम hot, फिर मॉडरेट, फिर कोल्ड या वेरी कोल्ड, या हम ऊपर से नीचे आते हैं तो द वेरी कोल्ड, फिर उससे कम कोल्ड होगा जैसे जैसे हम लैंड की तरफ आएंगे, फिर मॉडरेट एयर की, दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर. ओके, फिर मॉडरेट होगा, फिर हमारा जो दूसरा लेयर होगा एयर का हॉट होगा, फिर जैसे जैसे हम लैंड के क्लोज आएंगे इट विल बिकम वेरी हॉट, एंड द पार्ट ऑफ द, और यू कैन से द लेयर ऑफ द एयर विच इज मोर क्लोजर टू द लैंड, इट विल बी एक्सट्रीमली हॉट. Now as the sun ray will incident, suppose the sun ray incident हो रही है, वो किसी ट्री पे हिट करेगा, so what will happen, you can see this is the incident ray. Okay, it is bending away from the normal. incident ray अवे जा रही है क्योंकि यहाँ पर एयर क्या हो रही है, डेंसर हो रही है, सॉरी एयर इज बिकमिंग लेस डेंसर, सो इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. फिर ये रे दूसरे लेयर पे आ रही, दूसरे लेयर पे आ रही है, फिर से वो बेंड करिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल. फिर से ये जो दिस रे इज कमिंग, इट इज अगेन बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, and at last it is again bending away from the normal. And when this light ray bends away from the normal, or you can say when this light ray incidents away from the normal more than the critical angle, what happens, total reflection takes place, and the light ray which reaches it, we find that the rays are forming the mirages of water, or you can say traces of water. Now what is total internal reflection, this thing you will understand very clearly here. For a given pair of media, when a light is traveling from optically denser medium to optically rarer medium, ओके जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, यहां पर क्या हो रहा था, जैसे जैसे कोल्ड एयर आ रही थी दैट वाज डेंसर, और लाइट रे जब डेंसर से नीचे हॉट एयर में जा रही है दैट इज द रेयर मीडियम, तो क्या हो रहा है, there is a particular angle known as critical angle, and beyond which if the light ray is incident, total internal reflection takes place for this critical angle. ओके अगर हमारी जो लाइट रे है वो इंसिडेंट कर रही है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बना रही है, इफ द लाइट रे विच इज इंसिडेंटिंग इज फॉर्मिंग मोर देन इट इज फॉर्मिंग एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा, हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. Now what is critical angle? Critical angle is the angle at which the light ray is incident, that is the refracted ray forms an angle of 90 degree with the normal. Okay. क्रिटिकल एंगल क्या होता है बेटा, आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगी कि जो वार्म एयर होती है या हॉट एयर होती है वो लेस डेंसर होती है कोल्ड एयर से, और जैसे जैसे हमारी लाइट रे नीचे की ओर इंसिडेंट करेगी यहाँ पर कंटिन्यूअस मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, यू कैन सी हियर मल्टीपल रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस. और दिस मिराज व्हेन इज द मिराजेस और मिराज इज गोइंग टू फॉर्म, जब हमारी जो इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, वो क्या होगी, वो एंगल बना रही है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बना रही है. क्रिटिकल एंगल मतलब क्या होगा,
एक ऐसा एंगल है जब हमारे क्रिटिकल एंगल इज सच अ पॉइंट सिचुएशन जब हमारी रिफ्रैक्टेड जो रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी, वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी बल्कि क्या कर जाएगी, फिर से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ओके, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारा दूसरा लेयर है एयर का। यहां पर इंसिडेंट रे इंसिडेंट कर रही है, लेकिन इस वक्त जो हमारी इंसिडेंट रे है इट इज फॉर्मिंग एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल। अब इस सिचुएशन पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ अगर हमारा देखा जाए तो रे ऐसे जानी चाहिए थी, यस, लेकिन रे ऐसे जाने के बजाय क्या हो रही है, फिर इट इज नॉट गेटिंग रिफ्रैक्टेड बट इट इज गेटिंग इंटरनली रिफ्लेक्टेड। वो उसी मीडियम में दोबारा रिफ्लेक्ट कर जा रही है, एंड दैट इज नोन एज योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब भी हमारा इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बनाता है तो जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो रिफ्रैक्ट होने की बजाय क्या हो जाती है, उसी सेम लेयर ऑफ एयर में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहां पर आप देख रहे रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, एंड हमारा ब्रेन जो है वो रेस को सीधे देखता है, सीधे पढ़ता है। तो जब हमारी रेस ब्रेन को सीधे एक्सट्रापोलेट करेगी तो वी विल फाइंड दैट इमेज इज फॉर्मिंग हियर, एंड ड्यू टू दिस वी फाइंड द ट्रेसेस ऑफ वाटर। ओके, जब भी क्या हो रहा है, जब भी रे क्या हो रहा है, सपोज दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर, तो अगर कोई रे यहां से आ रही है, यहां पर कोई ट्री, यहां पर ट्री के लीव्स है, यहां पर इंसिडेंट की, अब ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। अब ये हमारा लेस डेंसर है तो थोड़ा अवे जाएगी नॉर्मल से। अब ये दूसरे मीडियम के लिए ये वाली रे इंसिडेंट हो गई, फिर से ये लेस डेंसर है, ये थोड़ा और अवे जाएगी। फिर तीसरे मीडियम में अगर हम मान लेते हैं कि हमारा इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बना रहा है, तो अब ये रे रिफ्रैक्ट करने की बजाय क्या हो जाएगी, उसी मीडियम में दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यू कैन सी यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है और ये हमारे आईज में पहुंचेगी। हमारा ब्रेन रेस को सीधे रीड करता है और हमें इमेजेस यहां पर दिखाई जाएंगी, दैट इज फॉर्म द ट्रेसेस ऑफ वाटर और यू कैन से मिराज। सो आई होप आई एम क्लियर टू यू दिस विद दिस थिंग। ओके, सो व्हाट इज फॉर अब आपको ये चीज समझ में आएगी दैट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया व्हेन अ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, चिल्ड्रन मिराज फॉर्म करने की क्या कंडीशन है, जब लाइट कहां से ट्रेवल करती है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, देयर इज अ पर्टिकुलर एंगल नोन एज क्रिटिकल एंगल, और अगर हमारी इंसिडेंट रे बियॉन्ड क्रिटिकल एंगल बनाती है, इफ बियॉन्ड विच इफ द लाइट रे इज इंसिडेंट, अगर हमारी इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बनाती है तो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है फॉर दिस क्रिटिकल एंगल। एंड व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल इज द सिचुएशन एंगल एट विच द लाइट रे इज इंसिडेंट, द रिफ्रैक्टेड रे, हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो एंगल कितना बनाती है, 90 डिग्री विद द नॉर्मल, लाइक दिस। सपोज ये हमारी नॉर्मल है, हमारी जो इंसिडेंट रे आ रही है वो इतनी ज्यादा एंगल बना रही है कि इस वक्त रिफ्रैक्शन ना होने की बजाय क्या होगा, हमारी रे होगी वो नॉर्मल के साथ क्या बना लेगी, ये इस तरह रिफ्रैक्ट हो जाएगी और नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बना लेगी। अब हमारी रे अगर और ज्यादा बियॉन्ड क्रिटिकल एंगल उससे और ज्यादा बड़ी बनाएगी तो ये क्या हो जाएगी, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, 90 डिग्री के बनाने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में। उस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होता है, एंड दैट इज रिफ्रैक्शन होते होते फिर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है रे उसी मीडियम में, एंड दैट इज नोन एज योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो कंडीशन है बेटा, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर मीडियम। अभी मैंने आपको बताया कि लाइट कहां से ट्रेवल करनी चाहिए, कूलर से हॉट एयर में, मतलब रेयर टू डेंसर मीडियम। ओके, और दूसरी कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो ओवरऑल क्या हो रहा है बेटा, अगर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर है, नीचे जाएंगे तो एयर क्या होगा, लेस डेंसर होगा। अब मान लो यहां पर ट्रीज के लीव्स है, यहां पर रे आई तो, और यहां पर एक नॉर्मल एग्जिस्ट हो गया, रे यहां पर आएगी इंसिडेंट रे, क्योंकि ये लेस डेंसर है तो थोड़ा दूर जाएगी। फिर ये जो हमारी रे है ये दूसरे मीडियम के लिए इंसिडेंट रे बन जाएगी, और इसके बाद जो ये नेक्स्ट मीडियम है ये और ज्यादा लेस डेंसर है तो ये और अवे जाएगी। फिर नेक्स्ट मीडियम के लिए ये इंसिडेंट रे बन जाएगी। अब हमारा जो दूसरा
लेयर ऑफ एयर है वो लेस डेंसर है, ये और दूर जाएगी। अब एक ऐसी सिचुएशन आएगी बेटा कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बनाएगा और रे रिफ्रैक्ट होने की बजाय उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और हमारा ब्रेन पीछे की ओर जो स्ट्रेट रेस को एक्सट्रापोलेट करता है और हमें इमेजेस या मिराजेस यहां दिखेगी। सो आई होप चिल्ड्रन आई एम क्लियर टू यू। नाउ चिल्ड्रन दूसरा है स्टार्स अपीयर्स टू ट्विंकल ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम देम। नाउ मिराजेस इज फॉर्म ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब हमारी रेस कहां से जाती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, और जब इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट करती है। अच्छा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स टेक्स प्लेस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। नाउ सपोज दिस इज आवर अर्थ चिल्ड्रन, दिस इज आवर अर्थ। Now earth is surrounded by various layers of air, you know, yes? Now suppose the star is here, you know star has its own light. जब star से light आती है बेटा तो क्या होता है, as you know again there multiple times refraction will takes place, yes? Now one more thing बेटा, that as जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे एयर क्या होता जाएगा, इन केस ऑफ अर्थ जैसे जैसे अर्थ के पास जो एयर लेयर्स होती हैं वो मोर डेंस होती हैं, ये आपको पता होगा, दैट द लेयर्स ऑफ द अर्थ विच इज क्लोज, लेयर्स ऑफ द एयर विच इज क्लोज टू द अर्थ, दे आर मोर डेंस एज कंपेयर टू द आउटर लेयर। तो आउटर लेयर कम डेंस होगी, यस, द मीन्स दे आर रेयरर। सो यहां पर हमारी रे इतनी बेंड करेगी। फिर हम जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, क्योंकि हमारा जो लेयर्स ऑफ द एयर है दे आर मोर डेंसर, सो दिस बेंडिंग विल टेक्स प्लेस मोर टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर मोर टुवर्ड्स नॉर्मल। ओके, इस तरीके से क्या होगा, वी विल फाइंड द इमेज ऑफ द स्टार समवॉट हियर। हमें लगेगा कि अगर हमारी जो आईज है वो पीछे की ओर रीड करेगी तो हमें यहां पर कहीं इमेज दिखेगा स्टार का। ओके, एंड व्हाई डज ट्विंकलिंग टेक्स प्लेस, क्योंकि बेटा द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एयर और एटमॉस्फेयर हैव डिफरेंट डेंसिटी। ओके, और जब भी एयर चलता है इसमें क्या होता है, वेरिएशन होता जाता है, डेंसिटी बदलती रहती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड हेंस यू फाइंड डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द स्टार विद द ट्विंकलिंग। सो ओवरऑल अगर बात करें बेटा, ईदर इट इज फॉर्मेशन ऑफ मिराजेस और दिस ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, बोथ द प्रोसेस टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्शन ओनली एंड ड्यू टू वेरिएशन ऑफ डेंसिटीज ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर। मिराजेस में देर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंड इन दिस ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार देर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। भाई जो हमारे अर्थ के अराउंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एयर होते हैं उसकी डेंसिटी डिफरेंट होती है। जो लेयर ऑफ द एयर हमारे अर्थ के क्लोज होगा दे विल बी मोर डेंस, और जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाएंगे द एयर विल बिकम less dense, and hence the ray which is the light ray which is coming from the star, it when it will reach to the surface of the earth, वो जो रे होगी वो नॉर्मल की तरफ मोर बेंड होती जाएगी, जिसकी वजह से you will find different positions of the stars. So I